students, welcome you all of you in today's class. See, yesterday we have solved the exercise A, B and C. So today we will see the page number 19. Okay. So see the page number 19. Already the thing can answer. Yesterday I sent a PDF on a group. Okay. So I hope you have write down in your notebook. Okay. So we will see the let's learn grammar. Okay. See in the let's learn grammar the way यहाँ पे क्या बोला है कि गुरु द्रोणाचार्य asked a lot of questions which are answered in both yes and no by the Pandavas. Understood? See the way Guru Dronacharya asked some questions to his students. जिस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने उनके स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछा था, प्रश्न पूछे थे, किसको? स्टूडेंट्स मींस पांडवास, जो 5 उनके स्टूडेंट्स थे. ओके, सो पांडवास आंसर ऑल ऑफ देम इन द सेम, हैव टू सॉल्व इट विद द यस और नो. अंडरस्टूड? जिस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने अपने स्टूडेंट्स मींस पांडवास को जो भी क्वेश्चंस पूछे थे एंड the Pandavas will give the answers only yes or no. Okay, see I just giving you example. If I ask you students, do you solve your homework? आप बोलेंगे yes ma'am I solved it. Some students क्या बोलेंगे? No ma'am I didn't solve. Understood? So you have to give the answers only yes and or no. If you say yes, so tell what is the, मतलब अगर आपका है तो आप लिखो कि yes हो गया, अगर नहीं तो वो भी लिखो why you didn't do this. Okay, so first दिया है कि answer the questions by giving both positive and negative. देखो first में क्या दिया है, जैसे example, they have given us example. Question है कि it is difficult test गुरुजी. Who asked? It is difficult Guruji. One second. किसने पूछा था ये? Yes, it is सहदेव. सहदेव asked it is difficult test Guruji. जैसे जिस प्रकार से सहदेव ने द्रोणाचार्य को क्वेश्चंस किया था कि सर गुरुजी ये जो टेस्ट आप दे रहे हो it is easy or difficult. So see what is the Dronacharya's reply. No, it isn't difficult, it's a easy. Like this कि नहीं ये बहुत easy है, ये difficult नहीं है. मतलब ये difficult नहीं है, ये बहुत ही easy है. Question number 2. Can you do it? Ask Guruji. द्रोणाचार्य क्या द्रोणाचार्य बोलते क्या तुम ये कर सकते हो क्या? See all the Pandavas has give the answers yes we can Guruji. Yes हम ये कर सकते हैं. Replies the 5 Pandavas. Understood? आपको समझ में आ गया है? See तो इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे. I think this page number 19A, I think this is also I sent a PDF on your group, but till we have just overlooked what is the answers. I am just orally read out. Okay, so Ram, will you come to my party tomorrow? Sheep. Who? Ram asked to sheep. क्या बोल रहा है वो? Will you come tomorrow? Sorry, will you come to my party tomorrow? आप क्या मेरे पार्टी में आ रहे हो sheep? तो sheep जो भी आंसर we don't know about the answer. If he say yes, बोलेगा yes I will. Yes, I will come to your party tomorrow. हाँ कि मैं कल आपके पार्टी में आ रहा हूँ. If he said no, तो क्या बोलेगा? No, I will not come to your party tomorrow. मतलब we have to give the answer is yes or no. दोनों ही हमको लिखना है कि हाँ मैं कल तुम्हारे पार्टी में आ रहा हूँ. सेकंड लाइन में आप लिखोगे कि नहीं मैं तुम्हारे पार्टी में नहीं आ रहा हूँ. Okay, then mother and maid. Maid means नौकर. Okay, servant. Are you feeling well today? क्या तुम्हें आज अच्छा लग रहा है? तो maid कुछ भी बोल सकती. Yes, I feel good. और सेकंड में भी लिख सकती कि no, I will not feel. Sorry, I am not feeling well. तो maid क्या लिखती? Yes, I am feeling well today. हाँ मुझे बहुत मतलब बहुत मीन्स
है, मुझे अच्छा लग रहा है। और बी में नो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे मीन्स हो सकता है शी हैज अ फीवर, शी हैड अ फीवर, है ना, कि उसे बुखार है तो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। सी ओपन योर पेज नंबर 20, थर्ड वन, डिड शी सिंग वेल लास्ट नाइट, आस्क माय नेबर। नेबर मीन्स हमारी कौन, हमारे आस पड़ोस के, मराठी में क्या बोलते हैं हम, शेजारी, है ना। सो डिड शी सिंग वेल लास्ट नाइट मतलब कल रात को उसने बहुत मतलब अच्छा गाया था। इट इज अ क्वेश्चन मार्क्स, नेबर्स पूछते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ उसने अच्छा गाया। सेकंड में बोल सकते हैं नो शी डिड नॉट सिंग वेल। तो यस में क्या बोलेंगे, यस शी sang well because sang उसने पूछा, उसने गा दिया। sang is a past tense of sing, S-I-N-G, understood? Okay, so yes she sang well last night, हाँ उसने अच्छा गाना गाया था। Okay, no she did not sing well last night, नहीं उसने रात मतलब last night मतलब कल रात को उसने अच्छा गाना नहीं गाया था। Then fourth is a teacher student, do you know Ashok's brother, आपको पता है अशोक ब्रदर्स कौन है, is a question mark। if you know the Ashok brother you should say yes, if you really don't know about the Ashok brothers you say, you deny, you refuse। okay, so yes I know Ashok brother, replied the students। you know I don't know Ashok, I don't know Ashok, the reply to student to the teacher, understood? if you know, if you wanted to say yes you have to write it down the yes I know। if you don't wanted to, if you doesn't know so you simply say it's no I don't know। okay, then Shaila and Malti, Shaila, it is going to rain मतलब बारिश हो रही है क्या, चल रही है क्या, it is going to rain, yes it is going to rain, answered Malti। no it is not going to rain, है ना, आंसर मार्क आया समझ में। सो इसी प्रकार से वी सॉल्व द क्वेश्चन पेज नंबर 19 and 20। ओके, लेट्स मूव द बी एक्सरसाइज। ओके, सी इट्स अ बी एक्सरसाइज, इट इज वेरी इजी। सी sometimes the teachers, the persons, the people speak a short form, अंडरस्टूड। कभी कभार टीचर्स और जो कोई भी लोग who know the English well, who know the short form, तो वो क्या करते हैं, मतलब लॉन्ग फॉर्म न बोलते हुए वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, जैसे बोलेगी आई वोंट अलाउ यू, वोंट बोला है मैंने, वोंट, WONT, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, है ना, मींस वोंट मींस क्या होता है, विल नॉट, मैं नहीं करूंगा, इट्स अ पास्ट टेंस। जैसे आई कांट गो एनीवेयर, मुझे नहीं जाना है, हम क्या बोलते हैं, आई कांट, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। सो आई कांट, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म, इट्स अ कैनॉट, अंडरस्टूड। सो गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, आया समझ में। सो वहां पे दिया है, मैंने बोला कि जिस प्रकार से द पीपल, द टीचर्स who know the English, who know the short form, they are when they speaks English, when they speaking, they use the short form. When we type the message, understood? When we type the message, we have to mostly we have used the short forms. Okay? So यहाँ पे भी मतलब उन्होंने 10 शॉर्ट फॉर्म दिए हैं तो हमको उसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। ओके, दे हैव गिवन अस 10 शॉर्ट फॉर्म्स, वी हैव टू सॉल्व इन अ लॉन्ग फॉर्म, अंडरस्टूड। ऐसे जैसे कि मैंने बोला है वहां पे वोंट का, विल नॉट, कैन जैसे हम यूज करते हैं कैन का, कांट का कैन नॉट। अभी देखो फर्स्ट में क्या दिया है, वहां पे आई दिया है और वहां पे क्या है, आई डैश VE, it's a I have। Come on, you have to write the answer, I have, it's a first answer। हम लिख देते हैं second, third, then fourth, 5, 6, 7, 8, that's a 9 and 10। Okay, come on,
फर्स्ट का क्या है, इट्स अ आई हैव। सेकंड का क्या है, वहां पे दिया है आई फिर डैश दिया एम, सो ऑब्वियसली वी नो इट्स अ लॉन्ग फॉर्म, इट्स अ आई एम। अंडरस्टूड? क्या है इट्स अ लॉन्ग फॉर्म, आई एम। देन क्या दिया है वहां पे थर्ड, यू। देखो सेम जैसे यहाँ पे आई दिया है फिर डैश दिया, सेम यहाँ पे यू स्लैश वी दिया है, तो ऑब्वियसली इट्स यू हैव। हैव मतलब तुम्हारे पास, आई हैव मतलब मेरे पास, आई हैव मतलब मैं, यू हैव मतलब तुम्हारे पास। उसके बाद क्या दिया, बोर्ड। ऑलरेडी आई गिव यू एग्जांपल अबाउट द बोर्ड, सॉरी इट्स अ बोर्ड का क्या आएगा, इट्स अ विल नॉट। क्या आएगा, इट्स अ विल नॉट। प्लीज व्हेन यू राइट, व्हेन यू करेक्ट द आंसर, यू हैव टू लुक एट द व्हाट दे आस्क्ड। आप जब आंसर्स लिखते हो वहां पे देखो कि वहां पे क्या पूछा है। व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू विल स्पीक, व्हेन यू विल यूज द शॉर्ट फॉर्म, यू हैव टू नो व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म, है ना। अगर आप जब कभी लिखोगे, जब आप कभी बोलोगे शॉर्ट फॉर्म, तो यू हैव टू नो द मीनिंग, यू हैव टू नो व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू राइट एंड व्हाट यू रीड। समझ में आ गया? जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए कि आई हैव, व्हाट इज द आई हैव का शॉर्ट फॉर्म क्या है, और आई स्लैश वी दिया तो उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। विदाउट द वर्ड्स, जब तक हमें पता नहीं रहेगा, we can't understand what is the meaning and what is the understood. Okay, next देखो isn't दिया है, obviously is not, isn't का दिया है तो it's a is not। समझ, हम बोलते isn't it, सच में नहीं है ये, like this। don't go, हम ऐसे बोलते क्या, please do not go, it's a very long process, so obviously we use the shortcut form, it's a do not। do not मत करो, do not, don't do that। then I और स्लैश डबल एल दिया तो हम क्या यूज करते हैं, I will, I will। understood? okay, then क्या है, I will। उसके बाद can't, before we start I gave you the example, can't का क्या है, it's a cannot, it's a cannot। understood? next क्या दिया है, what's, हम बोलते क्या है, what's, what is, what's का क्या है, what is। हम बोलते हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म में what's your name, we can't ask to some person what is your name, directly we can ask what's your name, it is a what is। okay, okay, then last it's, लास्ट क्या है, इट्स दिया है ना, इट्स का क्या है, इट इज। लास्ट का क्या है, इट इज। ओके, सो अंडरस्टूड? कम ऑन, यू हैव टू राइट इट डाउन द लॉन्ग फॉर्म। फर्स्ट अगेन आई विल रिकॉल, फर्स्ट आई हैव, आई एम, यू हैव, will not, fifth का is not, do not, I will, cannot, what is and it is। it is a long form, है ना, it is a long form of, they have given us a short form। okay, so then read the following sentence। okay, see now see next क्या है फिर, see now we have also see here the words, है ना, already we have saw these words। okay, नेक्स्ट दिया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, वहां पे दिया है हमको वी हैव टू जस्ट रीड आउट दिस पैरा। नकुल, शैल आई शूट गुरुजी, व्हाट इज नकुल डूइंग, ही इज आस्किंग परमिशन टू शूट। दीक्षी, वहां पे द्रोणाचार्य उनके जो पांडवास है वहां का उन दोनों का कन्वर्सेशन दिया है। इफ अगर वो बोलता है कि मैं शूट करूं, वो बोलेगा कि कैन आई गो टू स्कूल, तो वो हो जाएगा कि वो परमिशन ले रहा है स्कूल जाने की। बट यहाँ पे क्या बोला है, शैल आई शूट गुरुजी, तो व्हाट इज नकुल डूइंग, ही इज आस्किंग परमिशन टू शूट, मतलब वो किसकी परमिशन ले रहा है, मतलब किसकी परमिशन, टू शूट करने के लिए। ओके, गुरुजी नो नॉट येट, फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चंस, बोलते हैं नहीं अभी नहीं,
सबसे पहले मेरे आंसर का आप क्या करो, जवाब दो. ओके, हियर गुरुजी इज गिविंग कमांड और एन ऑर्डर टू नकुल. यहाँ पे जो गुरुजी है वो ऑर्डर दे रहे, वो कमांड दे रहे नकुल को. ओके, सहदेव इट इज डिफिकल्ट टेस्ट, नो इट इज इजी. नकुल सहदेव बोल रहा है कि सर ये टेस्ट जो है वो इजी है या डिफिकल्ट है, तो गुरुजी बोलते नो इट इज इजी, नहीं ये बहुत ही आसान टेस्ट है. इट इज अबाउट द सेंटेंस गुरुजी हैड मेड अ स्टेटमेंट्स ओनली. तो इस प्रकार से क्या कर रहे वो जो गुरुजी है वो अपने पांडवास को दे आर गिवन अस द स्टेटमेंट्स. ओके, see so we have what we have solved the page number 19. We have solved the yes or no, as also we have solved the B. It's a short form to long form. Okay, so tomorrow we will see the page number C and the let's listen page number 21. Okay, so till then you have to solve all the exercise what I have taught you. Okay, and please don't miss what in your what letters, मतलब आप and spellings also. आपको और you have to write the bold in a capital, मतलब आपको जो भी है वो आपको बोल्ड अक्षर में लिखना है. Please use the dark pencil when you are when you are answer, when you are solve the question answers. Okay, so see you soon. We will meet tomorrow. Till then, take care. Bye. Please keep studying. Okay, see you.